Sociology optional is one of the most popular optional subjects for UPSC Civil Services exam and for good reason, क्योंकि 3 से 4 महीने में अगर आप ढंग से तैयारी करो तो you can cover the syllabus at least once, and at the same time an understanding of this subject helps you out with GS1 with essay and like even in your ethics and GS2 and 3 papers वहाँ पे भी थोड़ा help करता है. Again primarily GS1 because GS1 से direct overlap है. Now the most common question that I get for sociology optional is this one, which is can I prepare by myself? And इसका एक बहुत simple सा आंसर है. Do you have a background in sociology? If you do not have a background in sociology, if yes, great. Can you prepare by yourself? Yes. If not, I would highly recommend that you take some classes. Why? Because जब मैंने sociology optional की तैयारी शुरू करी थी, I also thought that I will prepare by myself. It seems simple enough. बहुत ज़्यादा क्या complicated हो जाएगा? But sociology is a full-fledged subject in and of itself, and it requires you to develop a certain mindset. जो कि कभी कभार अपने आप से जब हम तैयारी कर रहे हैं तो it can take some time. तो जो 3 से 4 महीने का time period मैं बोल रहा हूँ, इतने में sociology हो जाता है. That can be dependent on this and sometimes on this. Right, because there will be some concepts which will be different for everybody. Now some person might find कि भाई Marx का theory बहुत ज़्यादा difficult है, other person might find कि भाई Mead का theory बहुत ज़्यादा difficult है, most people find Talcott Parsons की theory बहुत difficult है. तो whatever it is that is difficult for you, अगर you have to find कि भाई how do I get beyond that. So in today's video, what I'll be sharing with you is a brief walkthrough for what is the book list, paper 1, paper 2, we'll talk about a 4-month plan, and all things related to sociology optional. The idea is कि अगर अभी से आप तैयारी करते हो, right, from July, from the month of August, तो by November, December, you have enough time to cover the entire syllabus, even if you're studying maybe let's say 3, 4, 5 hours in a day for sociology, right? So with that, let's have a look. तो सबसे पहले प्लान की बात करते हैं. तो you need to go to file, make a copy. इस शीट का जब आप एक कॉपी बना लोगे तो देन यू विल बी एबल टू एडिट दिस टिल द टाइम इट विल बी अ नॉन एडिटेबल फाइल. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो इस प्लान के साथ साथ देयर आर 2 अदर थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू. नंबर 1, बात करते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज की. तो रिसोर्सेज की ये जो बात हमारी चल रही है, अब इसमें प्राइमरी मटेरियल इज योर एनसीईआरटी. क्लास 11th and 12th की एनसीईआरटीज, दिस इज वेयर वी वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट. इफ यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू सोशियोलॉजी, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट. क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल से आप शुरू करते हो तो इट ईजेज यू इनटू द सब्जेक्ट. सो रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो देयर विल बी सम नोट्स दैट वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेंगे, क्या होगा. देन हार्लैम्बोस एंड हॉलबॉर्न द बिग ब्लू बुक एंड एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान. ये है आपकी ये 2 किताबें. तो दिस हार्लैम्बोस एंड हॉलबॉर्न, एक ऑरेंज कलर का छोटा एडिशन भी आता है, वो नहीं लेना है, ये लेना है. एंड नितिन सांगवान की ये किताब. नाउ नितिन सांगवान की किताब का भी देयर इज अ वर्जन वेयर देयर आर 2 कॉपीज ऑफ द बुक. द सेकेंड बुक इज मोर सॉल्व्ड पेपर्स. सो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग प्रेपरेशन, even the single book edition will work because you don't really need solved papers right now, which will come much later, right? Paper 2 के लिए भी IGNOU BA/MA Material Essential Sociology के अलावा there's another book, BK Nagla, Indian Sociological Thought. तो जो भी मेजर आपके sociologists जिनके बारे में पूछा जाता था, all of them are covered in this particular book. So that is your major book list. Now coming to notes provided by us and selective जो ये मटेरियल हमें करना है. तो what you need to do is you need to go to upscprep.com. यहाँ पे आप सर्च कर लोगे हार्लैम्बोस, तो सोशियोलॉजी टॉपिक्स फ्रॉम हार्लैम्बोस आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि भी ऑन ऑल ऑफ द चैप्टर्स इन दैट ब्लू बुक, लेट्स से हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के चैप्टर की, तो इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, सिर्फ वो टिक कर दी गई है क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है, सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी है, राइट? सो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज upscprep.com पे आप गए, यहाँ पे आप गए रिसोर्सेज में सोशियोलॉजी नोट्स. तो यहाँ पे कुछ डिटेल्ड नोट्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन पेपर 1 का एंड पेपर 2 का. उसके अलावा व्हाट यू कैन चेक इज मेरे जो पर्सनल नोट्स थे, जो कि जब मैं पेपर दे रहा था
तो मेरे ये जो पर्टिकुलर नोट्स थे, तो दैट ऑल ऑफ देम आई हैव कंप्लीटली पुट हियर फॉर फ्री, यू कैन एक्सेस देम एज एंड व्हेन यू नीड. बट प्लीज कीप इन माइंड, देखो होता क्या है दैट सम पीपल थिंक दैट जस्ट बाय रीडिंग नोट्स आई विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. नहीं हो पाता है. हैविंग अ बुक इज अ गुड थिंग. Having these notes to refer to can be a good way to understand. Why? Because there will be a new perspective distillation होके वहाँ पे कुछ होगा. बट इन दोनों को मिला के आपको अपना नज़रिया इस पे बनाना है. प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ AI टूल्स, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, जितने भी ये हैं, all of them can be a very very good resource for you here in order to help you understand concepts. And at the same time, if you're interested in checking out the comprehensive course from upscprep.com, you can visit courses.upscprep.com. उसके लिए यहाँ पे आप कोर्सेज जाओगे, कोर्सेज में व्यू ऑल में हम आ जाएंगे. यहाँ पे सोशियोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, देयर इज द कोर्स विद मेंटरशिप एंड विदाउट मेंटरशिप. जो विद मेंटरशिप कोर्स है दैट हैज मेंटरशिप एक्सेस फॉर 3 whole years, राइट? सो इफ यू joining in July of 25, you get access till mains of 28. तो this is a course for that. Now with that in mind, coming back to the plan, तो ये रिसोर्सेज की बात हमने कर ली. सेलेक्टिव रीडिंग क्या करनी है वो बात कर ली है हमने. एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान एक बार पूरी पढ़ लो. डोंट वरी अबाउट कि भाई अच्छा दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू रीड दिस दैट, इसमें सेलेक्टिव, इस किताब में सेलेक्टिव कुछ नहीं करना है. रीड दिस एंड टू एंड बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कंसाइज बुक. अगेन कीप इन माइंड, बहुत मोटी किताब नहीं है ये, राइट? स्पेशली एज कंपेयर टू योर Harlambos की किताब. So naturally I don't want you to like skip anything over here. Do this entirely completely. And then जो BA and MA का मटेरियल है, यहाँ पे ये सेलेक्टिव इसलिए बोला गया है कि अब कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो सिर्फ वो चीज़ मैं ढूंढ के फ्रॉम BU का IGNOU का BA and MA मटेरियल आई एम गोइंग टू बी डूइंग, राइट? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई स्पेंड सम टाइम रीडिंग अबाउट वेबर मुझे समझ आ गया अगर, तो मुझे IGNOU का BA MA मटेरियल पे जाने की ज़रूरत नहीं है. इंडियन सोसाइटी में लेट्स से कास्ट सिस्टम मैंने कर लिया बट मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आई, देन आई एम गोना फाइंड IGNOU का BA एंड MA मटेरियल में कास्ट सिस्टम कहाँ कवर हुआ है, एंड देन रिलेटिव मतलब दो सेलेक्टिव थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू रीड. कमिंग बैक टू द प्लान. अब प्लान जो हमारा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st of July. You can start from any given Monday, but the idea is कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट? जुलाई में आप शुरू कर रहे हो अभी, तो बाय अर्ली दिसंबर यू विल बी एबल टू फिनिश दिस एंटायर ऑप्शनल आराम से. जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, वेरी इजी, मतलब स्लो पेस पे. 3 to 4 hours की असम्पशन से हम यहाँ पे चल रहे हैं कि भाई आपको एक जो छोटी NCERTs भी पढ़ने को 2-2, 3-3 दिन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे. सो देयरफॉर द प्लान अज्यूम्स कि भाई 3 to 4 hours in a day you're giving for optional, and on the basis of that you're moving forward. तो going like that you will see कि जो मेजर आपके टॉपिक्स हैं दे हैव बिन ब्रोकन डाउन कि भाई आज के दिन आपको नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पढ़ना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, वेरिएबल सैम्पलिंग. मार्क्स के लिए फिर आपको मिलेंगे 5 दिन, राइट? क्योंकि थिंकर्स आर द कोर ऑफ सोशियोलॉजी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ओवरऑल लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि भाई सोशियोलॉजी ऑप्शनल आई एम सपोज टू बी डूइंग इन 3 to 4 months, राइट? 3 to 4 months में सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर मैं कर रहा हूं तो 1 to 1.5 month इसमें से सिर्फ और सिर्फ जाएगा हमारा थिंकर्स के लिए. क्योंकि थिंकर्स अगर आपको एक बार समझ आ गए सोशियोलॉजी के, द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल मेक अ लॉट मोर सेंस. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द सिलेबस सॉर्ट ऑफ इज डिवाइडेड इनटू 3 parts: सब्जेक्ट, thinkers, and then matter माने कि what do sociologists study. तो सब्जेक्ट क्या है? दिस इज अबाउट सोशियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी के मेथड क्या है, हाउ डू यू डेटा कलेक्शन कैसे होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, रिसर्च मेथड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दिस इज पार्ट 1, 2 and 3 of the syllabus. Thinkers जो है this is part 4 of the syllabus, but this is 30 to 40% of the syllabus. क्योंकि एक बार अगर आपने thinkers ठीक से कर लिया तो ये thinkers आपके यहाँ पे भी relevant होंगे,
थोड़े आपके यहाँ पे भी रेलिवेंट होते हैं, तो थिंकर्स इज द मेन पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट यू विल सी कि ये 4 महीने का ये प्लान है, एंड 21 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट अ फुल मंथ यहाँ पे हमने सिर्फ थिंकर्स को दिया है। 4 वीक्स, 4 वीक्स से ज़्यादा भी आप इसको दे सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड कि इस प्लान को मॉडिफाई ज़रूर करना इफ़ यू फील दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड थिंकर्स वेल इनफ। इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू एक्सटेंड फॉर 1 वीक, स्पेंड मोर टाइम ऑन थिंकर्स, क्योंकि एक बार थिंकर्स समझ आ गए तो फिर उसके बाद क्या होगा ना कि भाई यहाँ पे देखो, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी है, तो देन इट इज थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबेरियन थ्योरी। जो मैंने वेबर यहाँ पे पढ़ा है और जो मैंने मार्क्स यहाँ पे पढ़ा है, इन्हीं की थ्योरी का एप्लीकेशन फॉर स्ट्रैटिफिकेशन आएगा, इन्हीं की थ्योरी का एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक लाइफ आएगा, फॉर पॉलिटिक्स आएगा, फॉर रिलीजन आएगा, फॉर सिस्टम्स ऑफ किनशिप आएगा, एंड फॉर सोशल चेंज आएगा, राइट? तो कीप दैट इन माइंड दैट इफ यू अंडरस्टैंड थिंकर्स, दिस इज ट्रू फॉर पेपर 1 एंड दिस इज ट्रू फॉर पेपर 2। पेपर 2 में इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो हैं, दे आर लाइक मोर वेरिड। हालांकि लिखे यहाँ पे 3 4 5 ही हैं, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, AR देसाई, एंड लुई दुमोंत एंड आंद्रे बते। सो दीज आर द 4-5 थिंकर्स जो आपके लिखे हुए हैं, बट इनके अलावा भी देर आर सम प्रोमिनेंट थिंकर्स लाइक इरावती कर्वे, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो दैट्स वाई जो हमारी किताब थी नगला, BK नगला, दैट्स अ ग्रेट बुक टू स्टडी इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। तो बेसिक आइडिया अपना ये है, एंड उसके बाद फाइनली व्हाट वी हैव आल्सो डन इज वी हैव पुट प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम द लास्ट 5 years फॉर UPSC मेंस, माने कि 2020, 21, 22, 23, 24, ये 5 साल के पेपर्स, एंड एज एंड व्हेन इस साल का मेंस होता है तो वो भी ऐड हो जाएगा, एंड विल कीप एडिंग पीछे के और पेपर्स ओवर हियर। द आइडिया ओवर हियर इज सिंपल कि मैं यहाँ से इसको फिल्टर कर सकता हूँ, मैंने कर दिया क्लियर, एंड अब मैं सिंपल इसको ऐसे कर लूँ कि भाई मुझे पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे कितने सवाल आए हैं पिछले 5 साल में। 2 सवाल आए हैं, 10 markers, these are the 2 questions. If I want to practice, if I've done this particular topic, so then I can simply filter it this way and make my life easier. So इस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, सो दैट जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हो, you also get to practice, you know, look at the questions and then try and answer them as best you can. So that's it for this video. If you were waiting for a plan, this is it. Get started. And if you're interested in joining the comprehensive course Sociology Ka with upscprep.com, you can visit courses.upscprep.com. All the best on your UPSC journey.